Hello, dear friends. Good morning. Welcome to SS Divine School. Dear children, today we are going to learn Sanskrit in 7th standard. Now you all are in 7th standard. Okay. So today we will start our Sanskrit's first lecture. As usual, before we start our chapters and study, let us get some introduction of our textbook. See, this is the front page of our textbook. Okay. See how it looks. There are some pictures. Okay. Pictures of birds, pictures of stadium. Okay, and some pictures of shape, and a girl and or a teacher or his father is given here. So according the front page, we can say that there must be something related to these pictures in our study. Now the next page, Mama Parichaya. Last year we had small self introduction in our Sanskrit textbook, right? But right now we have some more sentences in Mama Parichaya. See, first one, Mama नाम डैश अस्ति, my name is डैश. यहाँ पे आपको खुद का नाम लिखना है. Then मम पितुः नाम, यानी कि your father's name. मम मातुः नाम, it means your mother's name. मम अवटङ्कः means your surname. मम विद्यालयस्य नाम, it means your school name. अहम सप्तम्यां कक्षायां पठामि means I am studying in 7th standard. And अहम संस्कृतं पठामि means I am studying Sanskrit. Okay, अहम संस्कृतं वदामि means I am speaking Sanskrit. See this page. This is the next page. Sanskrit standard 7 semester 1 is written here. Here some information is written in Gujarati. It says that from 2013 this syllabus had been started. This is the pledge. Last year we learned it properly. Right now we all can read and speak in a proper way. So whenever you get free time, you have to learn it and memorize it. Okay. Printing price is given here, and production and public printing information is given here. गुजरात काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर गांधीनगर जो है वो ये बुक का प्रोडक्शन करता है. एंड गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स गांधीनगर जो है वो ये बुक का प्रिंटिंग करता है. So this is the copyright given here. Preface is given here. The name of those persons who have contributed to design and print this book is also given here. Now the first edition was in 2013, and right now which book we are going to learn? The edition of 2018. Now who and where it is published by, तो ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है. नाउ वेर इट इज़ प्रिंटेड बाय, तो ये भी उसका एड्रेस और नेम जो यहाँ पे दिया गया है. नाउ दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, इट इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्शन 51A. ओके, वी ऑलरेडी नो इट वेरी वेल. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. अनुक्रमणिका means index. Okay, here the chapters given which we have to learn in semester 1. So from chapter 1 to chapter 9 we are going to learn in this semester, including Vandana, Pundravartanam 1 and Pundravartanam 2. Now the first chapter is Vandana. Okay, Vandana means what? Prayer. See here, 4 slokas are given here with the picture of Goddess Saraswati. Okay, so today we will start our first chapter, and that is Vandana. So before we start our study, let us revise some previous year's knowledge. Okay, last year हमने क्या सीखा था? लास्ट ईयर जब हमने संस्कृत स्टार्ट किया था तब हमने सबसे पहले सीखा था अकारांत पुल्लिंग. ओके, ईकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग एंड अकारांत नपुंसकलिंग. ये हमने जेंडर सीखे थे. ओके, उसका सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल सीखा था.
ओके, फिर हमने क्या सीखा था, इसमें जो स्टोरीज आती थी वो सीखी थी, फिर हमने नंबर्स सीखे थे। ओके, फिर हमने डेज भी सीखे थे ना, डेज भी सीखे थे, फिर बाद में श्लोकास भी सीखे थे। ओके, फिर वर्तमान काल परस्मैपद के जो रूप थे मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति, ये भी हमने सीखा था। ओके, सो ये हमें भूल नहीं जाना है, हमको याद रखना है, क्योंकि ये इस साल भी काम आने वाला है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज वंदना। वंदना मीन्स प्रेयर। ओके, वंदना मीन्स व्हाट? प्रेयर। जो हम सुबह करते हैं ना, भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, तो आपको पता है प्रेयर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेयर? तो प्रेयर मीन्स द फूड ऑफ अवर सोल, यानी कि जो प्रेयर है वो हमारी हमारी जो आत्मा है, हमारा सोल जो है उसका भोजन कहा जाता है। जैसे कि हमको जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए ना, खाएंगे तभी हमारे में एनर्जी आएगी, तभी हम जिंदा रह सकते हैं ना। हमको प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे। ओके, हमको पैसे की ज़रूरत होगी तो हम काम करेंगे। वैसे ही हमारी जो आत्मा है उसकी शांति के लिए और उसको अच्छा हेल्दी रखने के लिए हमको रोज गॉड से प्रेयर करनी चाहिए। कितनी भी मिनट प्रेयर करो, 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, जब भी करो, कोई भी टाइम पे आप प्रेयर कर सकते हो, पर वो उसका टाइम थोड़ा फिक्स होना चाहिए ताकि वो अच्छे से हो पाए। तो प्रेयर हमको रोज करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमको प्रेयर दी गई है, यहाँ पे 4 प्रेयर दी गई है, 4 श्लोकास जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला जो श्लोका है वो गॉडेस सरस्वती के लिए है, दूसरा जो है वो संस्कृत भाषा के लिए है, संस्कृत माता के लिए। वाई वी कॉल संस्कृत एज अ मदर? बिकॉज इट इज़ द मदर ऑफ अदर लैंग्वेज एंड इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स और गिरवान। हमको लास्ट ईयर मैंने आपको सिखाया था ना कि संस्कृत भाषा जो है वो देवों की भाषा है और दूसरी भाषाओं की जननी है। ओके, और ग्रामेटिकली भी ये संस्कृत लैंग्वेज है वो बहुत ही परफेक्ट है। फिर तीसरा जो श्लोक है वो है दिए के लिए। दिया यानी कि जो हमारा लाइट होता है, जो कैंडल होता है उसके लिए है। तो दिया में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, ये यहाँ पे दिया गया है। एंड लास्ट में दिया गया है जो चौथा नंबर का श्लोक है वो गॉड विष्णु के लिए। ओके, यानी कि भगवान कृष्णा के लिए, कि उनकी कृपा से क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 4 जो श्लोका है वो दिए गए हैं। सबसे पहले हम ये श्लोका है वो गाएंगे एक बार। ओके, लेट अस चांट द श्लोकास विथ मी। आई विल रिपीट इट ट्वाइस। 2 बार मैं बोलूँगी श्लोका। फर्स्ट वाले में आपको शांति से सुनना है, फिर दूसरी बार जब मैं बोलूँगी कि आई रिपीट इट, तभी आपको मेरे साथ गाना है, ताकि आपको उसका जो रिदम है वो आ जाए और उसके जो मीनिंग जो है, वर्ड जो है उसको कैसे प्रॉपर प्रोनाउंस करें वो भी आपको पता चल जाए। राइट, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो आप देख सकते हो, नहीं तो शांति से सुनना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वन। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। I repeat it again. See dear children, last year I taught you that how can we do prayer like this way. Okay, our hand, whenever we join our hand, it should be very clear, near to our heart. हमारा जो हार्ट है उसके एकदम पास हमारा जो है हैंड होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में से जो एनर्जी निकलती है, हमारे हैंड में से जो एनर्जी वो प्रोड्यूस होती है वो सीधे हमारे हार्ट में जाए, इससे हमें पॉजिटिव थॉट मिलते हैं। ओके, तो व्हेनेवर वी स्टार्ट प्रेयर आवर पोजीशन शुड बी लाइक दिस वे। ओके, सो आई रिपीट इट। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाउ सेकंड वन। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। I repeat it again.
पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। नाउ थर्ड वन, शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। I repeat it again. शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। Now fourth one, मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। I repeat it again. मुखं करोतु वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सो ये थे हमारे 4 श्लोकास। नाउ जो 4 श्लोकास है वो क्या कहते हैं वो पहले हम देख लें। पहला जो श्लोका है वो देवी सरस्वती को वंदन किया है, उनकी प्रार्थना की है। देवी सरस्वती जो है वो हमारी विद्या की देवी है। इट इज़ द गॉडेस ऑफ नॉलेज, एजुकेशन। ओके। सेकंड वन जो है वो संस्कृत माता के लिए है। संस्कृत इज अ मदर लैंग्वेज ऑफ अदर लैंग्वेज एंड ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। सो सेकंड श्लोका जो है वो संस्कृत माता के लिए है। थर्ड वन जो है वो कैंडल, लाइट के लिए है। लाइट में इतनी पावर है कि वो हमारा कल्याण करती है, हमारा हेल्थ अच्छा रखती है, हमें हमारा हेल्थ एंड वेल्थ दोनों अच्छा रखती है, और हमारे आसपास जो नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो उसको ख़त्म करती है और हमारा सब अच्छा करती है। फिर फोर्थ वन जो है वो भगवान माधव के लिए है कि इनकी कृपा से जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो बोल सकते हैं, और जो अपंग है, जो हैंडीकैप है, वो बड़ा सा पर्वत भी चढ़ सकते हैं। तो ऐसे ये 4 श्लोकास जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। सो अभी जो श्लोकास दिए गए हैं उसके हार्डवर्ड मैं आपको लिखवा देती हूँ पहले, बाद में हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ओके। सो जो हार्डवर्ड मैं बोर्ड पे लिखती हूँ वो हार्डवर्ड आपको अपनी नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखना है, सिरों रेखा बांध के लिखना है, और एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में संस्कृत और सामने उसका इंग्लिश लिखना है, ताकि हार्डवर्ड आपको जो समझ में आएंगे उसका मीनिंग आपको पता होगा, तभी आपको उसका ट्रांसलेशन आएगा। अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू राइट इट्स ट्रांसलेशन इन एग्जाम। ओके। अच्छे से हार्डवर्ड लिखे होंगे, उसके मीनिंग आपको पता होगा, तो आप अच्छे से ट्रांसलेशन उसका सीख पाएंगे। सो लेट अस राइट हार्डवर्ड्स विथ मी। ओके। Now see the hard words are written on the board. Okay. First one from the first sloka. या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु। तो सर्वभूतेषु means in all animals. या देवी the goddess. या देवी means what? The goddess. सर्वभूतेषु means in all animals. विद्यारूपेण संस्थिता। विद्यारूपेण means in the form of learning. In the form of learning. Vidya means learning or education. We can say study. Okay. Rupeण means form. Okay. संस्थिता means existing. वहाँ पे वो है। Okay. Now नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमस्तस्यै 3 बार दिया गया। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो जो तस्यै नमः तस्यै
नमस्तस्यै को हम ब्रेक करेंगे वर्ड को, तो व्हाट विल बी, विल गेट नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमः तस्यै 3 बार। हर, तस्यै मीन्स टू हर एंड बोइंग, नमः मीन्स बोइंग, ओके, बोइंग टू हर, बोइंग टू हर। नमो नमः, नमो नमः ये भी संधि है, उसको हम ब्रेक करेंगे, तो इट विल बी लाइक नमः नमः, नमो नमः, नमः नमः मीन्स गोइंग अगेन एंड अगेन, ओके, बार बार उसको प्रणाम करना। तो पहला श्लोक है वो क्लियर हो गया हमारा कि एजुकेशन के फॉर्म में सारे एनिमल्स के अंदर गॉडेस सरस्वती जो है वो एग्जिस्टेड है, और ऐसी गॉडेस सरस्वती को उनको बार बार हम प्रणाम करते, बोइंग अगेन एंड अगेन, ओके। नाउ द सेकंड वर्ड इज पठामि संस्कृतम नित्यम, वदामि संस्कृतम नित्यम, ओके। तो नित्यम मीन्स, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट करके वर्ड डाला है सदा। नित्यम इज द सिमिलर वर्ड ऑफ सदा, सदा एंड नित्यम बोथ द मीनिंग आर सेम, ऑलवेज, ओके। नित्यम मीन्स ऑलवेज। पठामि, सी व्हाट इज हियर, पठ धातु है और उसका वर्ब यहाँ पे दिया गया है मी के साथ, पठामि, मी वह मह, तो मी मीन्स किसके साथ आ रही है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, राइट। मी किसके साथ आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ओके। तो मी यानी कि आई, हमारी बात कही है, हमारी बात अगर होती है तो आई के लिए पहला फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर है तो मी यूज होता है, राइट। पठामि मीन्स आई रीड और आई लव। वदामि सेम हियर, मी जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब कर्म परस्मै पद, ओके। वदामि मीन्स आई स्पीक, सम्यक मीन्स वेल, हम बोलते हैं कि वेल, तो संस्कृत में उसको बोलेंगे सम्यक। ये क है वो क्या है, हलंत है, जो स्टार्टिंग लाइन दिख रही है उसे क्या बोलते हैं, हलंत। उसमें सम्यक नहीं बोल सकते हम, सम्यक तो रॉन्ग है, कैसे बोलेंगे इसको, सम्यक, सम्यक, ओके। सम्यक नहीं बोला है, क्या बोला है, सम्यक, वेल, ओके। देन ध्यायामि, तो ध्यान, ध्यान करना, ध्यायामि मीन्स मेडिटेट और कॉन्सेंट्रेट। अगेन ये आई के लिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे मी है, ओके। नाउ संस्कृत मातरम, इट मीन्स द मदर संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत मीन्स संस्कृत एंड मातरम मीन्स मदर, ओके। एंड लास्ट वन इज वंदे मीन्स आई गो, वंदे एंड नमः बोथ आर सिमिलर वर्ड, ओके। फर्स्ट सेकंड वन इज डन, क्या कहा है सेकंड पैराग्राफ में, सॉरी श्लोका में, पठामि संस्कृतम नित्यम, तो आई रीड संस्कृत, आई ऑलवेज रीड संस्कृत। वदामि संस्कृतम सदा, आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत। ध्यायामि संस्कृतम सम्यक, यानी कि मैं जो ध्यान है वो भी मैं अच्छे तरीके से संस्कृत में करता हूँ। एंड वंदे संस्कृत मातरम, तो ऐसी जो संस्कृत मदर है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, आई गो टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज। नाउ थर्ड वन, सी शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदम, दीप शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। तो दीप ज्योति लिखा है, उसके आगे मैंने ब्रैकेट में हे डाला है, क्या डाला है, हे यानी कि ओ, ओके। दीप ज्योति, दीप ज्योति ही, ये जो डॉट दिख रहा है पीछे उसको हमें क्या बोलना है, विसर्ग को हम क्या बोलते हैं, ह प्रोनाउंस होता है, क्या प्रोनाउंस होता है, ह। तो त को आगे छोटे ई की मात्रा है तो हम क्या बोलेंगे, दीप ज्योति ही, दीप ज्योति ही, हे दीप ज्योति ही मीन्स ओ लस्टर ऑफ द लैम्प शुभम,
अच्छी नहीं होगी ना, इसीलिए शत्रु बुद्धि यानी कि एनिमीज इविल थॉट। एनिमी जो होते हैं उसके थॉट कैसे होते हैं, गंदे थॉट होते हैं, तो यहाँ पे इविल लिखा है। एनिमी जो होते हैं उसके थॉट अच्छे नहीं होते तो उसको गुड थॉट नहीं लिख सकते। शत्रु बुद्धि, बुद्धि यानी कि हमारा नॉलेज, तो शत्रु की बुद्धि कैसी होती है, गंदी होती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एनिमीज इविल थॉट। ओके, एंड द नेक्स्ट इज ते नमः अस्तु। ओके, मींस गोइंग टू यू। तो ऐसा जो दिया है मिस्टर ऑफ लैंप को हम उनको प्रणाम करते हैं कि आप जो है हमारा आरोग्य अच्छा रखते हो, हमको धन प्रदान करो, हमारा अच्छा आरोग्य प्रदान करो, हमारा कल्याण करो, शुभ करो, और हमारे जो दुश्मन है, एनिमीज है, उनके गंदे जो विचार है उसको नष्ट करो। ऐसे दीप ज्योति, ऐसे लैंप को हम लस्टर ऑफ लैंप को वी आर गोइंग टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लास्ट श्लोका। ओके, सी मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। यत्कृपा, जिसकी कृपा से, whose grace, यत्कृपा means whose grace, मुकम to the dumb, जो बोल नहीं सकता, जिसकी कृपा से जो बोल नहीं सकता, who cannot speak, वाचालम करोति मेक स्पीकिंग, जिसकी कृपा से जो बोल नहीं सकता है वो बोल सकता है। बाय हुज ग्रेस द डम्ब कैन स्पीक, जो नहीं बोल सकता वो बोल सकता है उसकी कृपा से। ओके, देन पंगुम, सी डियर फ्रेंड्स, ये वर्ड यहाँ पर मैंने जो लिखा है प, फिर आपको ड जैसा दिखेगा, यहाँ पे बिंदी दिखेगी और नीचे ग है, ग को उ की मात्रा लगी है, फिर हलंत म है। तो ये जो ड जैसा दिखता है वो क्या है, नोजल साउंड है। ये कौन सा वाला है, नोजल है, उसको क्या बोलेंगे, औं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, औं। तो उसको प्रोनाउंस क्या होगा ये वर्ड का, पंगुम। क्या होगा, पंगुम, बरोबर है। तो पंगुम मीन्स टू दी हैंडीकैप, जो हैंडीकैप है, जिसके पैर अच्छे नहीं है, who cannot walk properly। ओके, गिरिम यानी कि माउंटेन, गिरिम यानी व्हाट, माउंटेन। लंघयते, अगेन ये वाला जो वर्ड है वो नोजल वर्ड आया। देखो यहाँ पे ड जैसा दिख रहा है, नीचे घ दिख रहा है आपको, राइट। ल औ घ य ते, ल फिर अनुनासिक है, फिर घ और य और ते, लंघयते, लंघयते। तो लंघयते मीन्स मेक्स क्रॉसिंग और क्लाइंबिंग। तो जिसकी कृपा से जो डम है, जो बोल नहीं सकता, वो अच्छे से बोल पाता है। जिसकी कृपा से जो हैंडीकैप है, जो अच्छे से चल भी नहीं पाता है, वो एक माउंटेन क्रॉस कर सकता है, माउंटेन क्लाइंब कर सकता है। ऐसे परमानंद माधवम एंड टू द डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु। किसकी कृपा से ये सब हो सकता है, परमानंद माधवम, परम आनंद माधवम। परम आनंद यानी कि जो बहुत हमको आनंद दे सकता है, हमको खुश रख सकता है, वो कौन है, माधव यानी कि भगवान विष्णु, लॉर्ड कृष्णा। टू द डिलाइटफुल गॉड श्री विष्णु, ऐसे भगवान डिलाइटफुल गॉड को आई गो यानी कि हम वंदे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। समझ आया श्लोक चिल्ड्रन। नाउ जितने हार्डवर्क हमने लिखे बोर्ड पे वो सारे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके, फिर इतने हार्डवर्क नोट डाउन हो जाए, फिर आपको सारे हार्डवर्क के मीनिंग और संस्कृत और इंग्लिश दोनों मीनिंग आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसका ट्रांसलेशन और उसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको लिखाऊंगी। तो तब तक आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले जो श्लोका हमने पहले गाए थे वो सारे श्लोका आपको रिकॉर्डिंग वीडियो देख के पहले उसको सीखना है, गा लेना है। बार बार गाओगे, दिन में 2 बार गाओगे, फिर उसको रूटीन बना दो। सुबह रोज उठ के नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद
रेडी हो जाते हो तो पहले ये संस्कृत की टेक्स्ट बुक ओपन करके उसका वंदना चैप्टर है वो ओपन करके ये श्लोक आप भगवान के पास हाथ जोड़ के बोलोगे रोज। ओके, तो आपका बाय हार्ट भी हो जाएगा, एग्जाम में भी काम आ जाएगा और आपकी प्रेयर भी हो जाएगी। ओके, फिर क्या करना है आपको, ये सारे अपनी नोटबुक में लिख देने हैं अच्छे से। चारों चार श्लोका के हार्डवर्ड जो है मैंने आपको अच्छे से लिखवा दिए, एक्सप्लेन भी कर दिए, वो आपको लिखना है और याद रखना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।